اللہ جب دیر کرتا ہے تو مایوس نہ ہونا، وہ ہمیشہ بہترین لمحہ چنتا ہے، ہماری نہیں اپنی حکمت سے۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ کسی کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، جو مشکل ہوتا ہے وہ یادوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ جو لوگ دل کی بات ہنستے ہنستے چھپا لیتے ہیں، وہی سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے وقت نہیں کرتا، ہم خود کرتے ہیں اور پھر وقت کو الزام دیتے ہیں۔ محبت میں سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب دل خود سے جھوٹ بولنے لگے۔ خواب اگر نیت سے جڑ جائیں تو تقدیر بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ یقین وہ چراغ ہے جو اندھیروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ انہیں روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جب نیت سچی ہو تو راستے کانٹوں سے بھی مہکنے لگتے ہیں۔ مایوسی ایک پردہ ہے جو اللہ کی رحمت کی روشنی کو چھپاتا ہے۔ پردہ ہٹاؤ، روشنی تمہارے قریب ہے۔ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو دل کی گہرائی سے نکلے اور آسمان تک پہنچے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ ہر وہ پل جو تم نے دعا میں گزارا تمہارے مقدر کو بہتر بنانے میں لگا رہا۔ کامیابی کبھی اتفاق نہیں ہوتی، وہ دعا، صبر اور محنت کا خالص امتزاج ہوتی ہے۔ زندگی جب سخت ہو جائے تو سمجھ لو رب تمہیں نرم بنا رہا ہے۔ جن کے پاس سجدے ہوتے ہیں وہ شکست سے کبھی نہیں ڈرتے۔ منزل ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو تھکن سے نہیں دعا سے جیتے ہیں۔ جو شخص خاموشی سے جیتا ہے اس کی جیت سب سے بلند گونجتی ہے۔ دل کے سکون سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اور وہ سجدے سے ملتی ہے۔ وقت کی سختی انسان کو یا تو توڑتی ہے یا تراش دیتی ہے، تمہیں انتخاب کرنا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری خاموشی بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے اگر دل صاف ہو۔ تمہاری ہمت اگر خالص ہے تو قدرت تمہارے لیے حالات بدل دیتی ہے۔ دعا وہ دروازہ ہے جو بند لگتا ہے مگر اندر سے کھلا ہوتا ہے۔ ہر آزمائش میں ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے جو صبر کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ جو کچھ تم کھو چکے ہو وہ تمہارے صبر کا امتحان تھا، جو آئے گا وہ تمہارے یقین کا صلہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ کی گئی کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وقت لگ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس جگہ لے جاتا ہے جہاں تم جانا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر وہی تمہاری اصل منزل ہوتی ہے۔ جو لوگ دعا کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ انتظار کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ جو شخص رب کے فیصلے سے راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حوصلہ وہ طاقت ہے جو تمہیں وہاں بھی کھڑا رکھتی ہے جہاں سب جھک جاتے ہیں۔ صبر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمہیں اندر سے اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ درد بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تب تم صرف مانگتے نہیں، تم کائنات کو بدلنے کی اجازت دیتے ہو۔ تم جتنا ٹوٹو گے اتنا ہی مضبوطی سے جڑو گے اگر نیت میں خلوص ہو۔ خاموشی وہ عبادت ہے
जो सजदे के बगैर भी दिल को झुका देती है। जब तुम अल्लाह को अपना हमदर्द मान लो, दुनिया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। जो लोग रब से जुड़ते हैं वो दुनिया के शोर में भी पुरसकून रहते हैं। हौसले की एक चिंगारी नाउमीदी के 1000 अंधेरों को जला सकती है। जिंदगी अगर आजमाइश है तो तुम भी इम्तिहान देने वाले हो, और तुम्हें पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर दिल से जियो। तुम्हारी खामोशी अगर अल्लाह से जुड़ी हो तो दुनिया की हर चीख तुम पर खामोश हो जाती है। जो मंजिल तुम्हारे दिल को बेचैन रखे वही तुम्हारे नसीब में सबसे पहले लिखी गई थी। हर वो शख्स जो टूट कर गिरा, रब ने उसे किसी अजीम उड़ान के लिए चुना था। कामयाबी हमेशा शोर में नहीं आती, बाज औकात वो रात की खामोश दुआ में छुपी होती है। हौसला उस दरख्त की मानिंद है जो तूफान में झुकता तो है मगर गिरता नहीं। तुम जितना खामोश हो जाओ, तुम्हारी दुआ उतनी बुलंद सुनाई देती है। मायूसी दरअसल उस लम्हे की बेखबरी है जिसमें किस्मत पलटने वाली होती है। अल्लाह की जात तुम्हारे सब्र से ज्यादा जानती है कि कब क्या देना है। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हें बनाने वाला है वो कामिल है। नीयत की सच्चाई वो चिराग है जो बगैर हवा के भी जलता रहता है। जो शख्स खुद से हार ना माने, दुनिया उसे हरा नहीं सकती। कुछ खामोश कदम बुलंद मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, बस सब्र का साथ चाहिए। हिम्मत सिर्फ वो नहीं जो ललकारती है, बल्कि वो भी है जो खामोशी से बर्दाश्त करती है। जो रब पर यकीन रखते हैं वो रास्तों के नहीं, रोशनियों के मोहताज होते हैं। कामयाबी वो बीज है जो सब्र के पानी से उगता है और दुआ की रोशनी से फलता है। जो अंदर से सच्चा हो उसे बाहर की दुनिया जितनी भी झूठी हो शिकस्त नहीं दे सकती। ख्वाब वो नहीं जो तुम सोते हुए देखो, ख्वाब वो है जो तुम्हें सोने ना दें। खामोशी के लम्हात में अगर दुआ जिंदा है तो समझो तुम अब भी हारे नहीं हो। हिम्मत वो दरिया है जो आंसुओं के बगैर भी बहता है। बाज रास्ते दिखाई नहीं देते, सिर्फ यकीन की आंख से पहचाने जाते हैं। कामयाबी का सबसे पहला दरवाजा वो होता है जिसे सब बंद समझते हैं, सिर्फ दुआ उसे खोलती है। जो खुद से बात करना सीख जाए वो दुनिया की हर खामोशी बर्दाश्त कर लेता है। कामयाबी सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि हार कर दोबारा उठने की हिम्मत का नाम है। तुम जब सब्र करते हो तो वक्त तुम्हारे लिए झुकने लगता है। अगर तुम हमेशा हर काम में नाकाम होते हो तो ये 5 सच्चाइयां जान लो, फिर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। नंबर 1, नाकामी एक सबक है, अंजाम नहीं। हर नाकामी तुम्हें कुछ नया सिखाती है, उसे हार मत समझो, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया बनाओ। नंबर 2, मेहनत और सब्र का ताल्लुक लाजमी है। बगैर मेहनत और सब्र के कामयाबी मुमकिन नहीं, दोनों को अपना मामूल बनाओ। नंबर 3, खुद को बदलना जरूरी है। अगर वही पुरानी गलतियां
बार बार कर रहे हो तो कामयाबी कैसे आएगी? खुद में बेहतरी लाओ। नंबर 4, मनफी लोगों से दूर रहो। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनका असर कम करो, मुस्बत सोच अपनाओ। नंबर 5, वाज़े मकसद बनाओ और उस पर फोकस रखो। बेसिमत कोशिशों से बेहतर है कि एक मकसद पर पूरी तवज्जो दो। कामयाबी फिर खुद तुम्हारे पास आएगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सबक होते हैं, सजा नहीं। जो अंधेरों से डरते हैं वो रोशनी का हुस्न नहीं समझ सकते। तुम वो चिराग हो जो जलता है तो रास्ते बनते हैं, बस हवा से ना घबराओ। कामयाबी का आगाज अक्सर उस वक्त होता है जब तुम खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हो। अगर तुम सब्र करके थक चुके हो तो ये 3 निशानियां बताती हैं कि तुम्हें सब्र का फल मिलने वाला है। नंबर 1, दिल में सुकून आना शुरू हो गया है। मुश्किल के बावजूद तुम्हारे दिल को अब एक पुरअमन कैफियत महसूस हो रही है, जो कामयाबी के करीब होने की निशानी है। नंबर 2, मसाइल हल होने लगे हैं। वही रुकावटें जो पहले तुम्हें रोक रही थीं, अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं या उनका हल नजर आने लगा है। नंबर 3, खुद पर एतमाद बढ़ना। तुम्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन बढ़ने लगा है और तुम्हें मालूम है कि तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया उसका सिला जरूर मिलेगा। खामोशी में वो अल्फाज छुपे होते हैं जो दुनिया की सबसे बुलंद तकरीर से ज्यादा असर रखते हैं। तुम्हारी हर नाकामी तुम्हें एक नई हिम्मत के साथ जोड़ने आई थी, ना कि तोड़ने। हौसला वो सजदा है जो उठने के बाद तुम्हें मजीद झुकने से रोकता है। तन्हाई में मिलने वाली ये 3 नेमतें तुम्हारी दुनिया बदल सकती हैं। नंबर 1, खुद को समझने का मौका। जब शोर खत्म होता है तो दिल की आवाज सुनाई देती है। तन्हाई तुम्हें अपने अंदर झांकने का वक्त देती है। नंबर 2, सोचने और बेहतर फैसले लेने की ताकत। अकेलापन ज़हन को साफ करता है और जब ज़हन साफ हो तो फैसले भी पुख्ता होते हैं। नंबर 3, अल्लाह से करीब होने का वक्त। तन्हाई वो पल है जहां दिल अल्लाह से राजो नियाज करता है और वही कुर्ब तुम्हारी दुनिया बदल देता है। तुम्हारा खौफ तुम्हारे ख्यालात की पैदावार है, हकीकत नहीं। जो पल तुम्हें सबसे अकेला लगा वही रब के सबसे करीब था। तुम वो किताब हो जिसे वक्त पढ़ता है और दुआ लिखती है। हौसला कमजोर नहीं होता, हम उसे सुनना छोड़ देते हैं। कुछ जख्म दवा से नहीं, दुआ से ठीक होते हैं। वक्त कभी दुश्मन नहीं होता, बस वो तुम्हें तुम्हारी असल पहचान से मिलवाता है।